Dear students of CBSE Standard 12 BST. Yes, पिछले सेगमेंट में I discussed with the first and second chapter of BST board examination. The first chapter was the nature and significance of management. उसमें हम लोग features and importance of management हम लोग देखेंगे. ठीक है, all the कम से कम 5 पॉइंट आप you go through key points और उसमें से objectives of the management एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये दो बात आप अपने आंसर्स में जरूर रखें. व्हाट आई एडवाइज यू, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये कॉमन आंसर होगा इम्पोर्टेंस के केस में हर चैप्टर में बीएसटी का. ठीक है, मैनेजमेंट के चैप्टर में. उसके बाद आप सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया. यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क and unity of direction, centralization, decentralization. ठीक है, subordination of individual interest to general interest. Division of work क्या है? Work is divided into different parts on the basis of specialization. यहाँ पर कीवर्ड है स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ वर्क में. ऑलवेज कीप रिमेंबर, डिवीजन ऑफ वर्क में जो है कीवर्ड है क्या? स्पेशलाइजेशन. On which basis it is divided into different part or segment, there is specialization. ठीक है, unit of command में one boss will command the group of employees at particular point of time. यहाँ पर particular point of time लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक employee will be commanded by the group of bosses, but not at a time all bosses. At one particular point of time, this principle says कि एक बॉस कमांड करेगा ऑल एम्प्लॉयज को. ठीक है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, नॉट ऑल, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज अंडर हिम. ठीक है. व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? वन हेड वन प्लान. एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए एक हेड होगा. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, हम फिर से बोल रहे हैं, एग्जाम्पल में आप जरूर दें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का. उसमें टू व्हीलर भी को कंपनी बनाती है, फोर व्हीलर भी. तो टू व्हीलर के लिए अलग हेड होगा, फोर व्हीलर के लिए अलग हेड होगा. दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सेंट्रलाइजेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन एट सेंट्रलाइज लेवल, एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द मिडिल एंड लेवल ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. It is scattered all across the organization. Decentralized, the less important decisions are scattered. Then spread the corp, teamwork and harmony in the organization. Believe in we, not I. Teamwork is to be there, will be there. The teams wins, not the individual. That is the spread the corp principle. Escalation, sequence of communication is to be maintained. Okay, and in time of urgency, when this sequence is broken, it is called gang plan. ठीक है. Coordination, an essence of management. Coordination binds together all levels of management and all functions of management. The coordination चलते हैं, planning to controlling, planning, organizing, staffing, directing and control. ये 5 फंक्शन को एक धागे में बांध के क्या रखता है? That is a force, which is intangible force. Coordination आता है कभी. What is the intangible force which binds together all the functions of management? Coordination, essence of management. ठीक है. Then the subordination of individual interest to general interest. Individual interest will not be there over the general interest. That is the objectives of management. Objectives of organization will be the first priority for all. आपकी अपनी priority will come later on. While you are working, you have to think for the organization objectives. आप अपना ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे. दैट इज व्हाट. ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव जो आप नहीं देखेंगे, आपस का अपना बीच में कोई क्लैश नहीं होना चाहिए. इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए आपका जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए. दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है.
नाउ एब्सोल्यूट टेलर में एक टेक्निक्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि हाईली एफिशिएंट वर्कर्स आर given the high wage structure, less efficient workers are given the less or lower wage structure. This is the differential piece wage system. थर्ड चैप्टर में आप आ जाएं, बिजनेस इन्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. फैक्टर्स एंड फोर्सेस. फोर्सेस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट में? फोर्सेस क्या है? कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सप्लायर्स. All these are the forces going to impact the decision of the organization or management. ठीक है. forces, factors, economic environment, social environment, technological environment, legal environment, ecological environment. ठीक है, ये फैक्टर्स हैं. अभी फैक्टर्स में आपको ध्यान देना है की वेरिएबल्स. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, व्हाट द की वेरिएबल्स विल बी देयर? नेशनल इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस. ये आपको लिखना है की वेरिएबल्स आंसर में और आइडेंटिफाई करना है केस स्टडी में. केस स्टडी में वेरिएबल्स रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इन्वायरमेंट है. सोशल इन्वायरमेंट में कस्टमर टेस्ट, प्रेफरेंसेस, रिचुअल्स, सोसाइटी रिचुअल्स, religious festivals, all this will coming up in the social environment. social environment सबसे important environment है जो कि बिजनेस के सेल्स को अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा. क्योंकि कस्टमर्स आते हैं देर, उनका चॉइस है, उनका प्रेफरेंस है, उनके रिचुअल्स हैं, उनके फेस्टिवल्स हैं. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल. अब की वेरिएबल से आ गया culture, all this will come, heritage, all will come under the social environment. Then the technological में न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, how this will, अभी AI आ रहा है, how is it going to affect the business decisions? It is going to affect the business decisions to great extent. ठीक है, that AI, artificial intelligence, तो this will come under the technological environment. टेक्नोलॉजी नया आ रहा है, सॉफ्टवेयर आ रहा है. ठीक है. लीगल में व्हेन द लीगल न्यू एक्ट्स आर कमिंग, अभी इनकम टैक्स का डायरेक्ट इनकम टैक्स एक्ट नया आने वाला है. वो कैसे वो पूरे बिजनेस इंडस्ट्री में अफेक्ट करेगा? इट विल अफेक्ट. ठीक है, इट विल अफेक्ट ग्रेट एक्सटेंट. ठीक है. लीगल इन्वायरमेंट. इकोलॉजिकल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पॉल्यूशन बोर्ड का फरमान टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, द फैक्टर विच इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इज कमिंग अंडर द इकोलॉजिकल एनवायरमेंट. अभी पॉलीथीन बैग बंद हो गया है, पॉल्यूशन बोर्ड का फरमान आ गया, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस अचानक बंद हो गया. डाइवर्सिफिकेशन करना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है, एक दिन में वो नहीं होगा. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल स्टडिंग द फैक्टर्स एंड फोर्सेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. इस चैप्टर में फिर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. एडवांटेजेस क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का. यही है फर्स्ट मोवर एडवांटेज. मतलब क्या हुआ? टेकिंग द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द बिजनेस इन्वायरमेंट. वार्निंग सिग्नल, थ्रेट्स इज कमिंग आउट फ्रॉम द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर इन द बिजनेस. ठीक है, क्या थ्रेट्स मिल रहा है? गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गया. ठीक है, इफेक्टिव गिविंग द वार्निंग सिग्नल, थ्रेट्स. टैपिंग द रिसोर्सेस ऑफ द सोसाइटी इन्वायरमेंट. Business also taps लेता है resources. Okay, it taps. These are the things. दो बहुत important advantages में, फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड वार्निंग सिग्नल. ये ध्यान आप रखें. ठीक है, और सब तो अपनी जगह है. ठीक है, रिसोर्सेस आर कमिंग फ्रॉम द बिजनेस एनवायरनमेंट गिव्स द रिसोर्सेस टू ऑर्गेनाइजेशन. The limitations में, yes, business development also will create the pollution in the society. ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस का है, एनवायरनमेंट का है, बिजनेस एनवायरनमेंट का. अगर बिजनेस एक्टिविटीज विल बी गोइंग अप इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑल एस्पेक्ट्स,
The pollution will be created in the environment. Okay, this will be living unrest in the environment. creating the living unrest. ठीक है. अब बिजनेस इन्वायरमेंट इतना आप देख लें. ठीक है, इतना आप देख लें उसके की पॉइंट्स. नेक्स्ट आ गया आपका प्लानिंग फंक्शन में इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड प्रोसेस इन द प्लानिंग. जो स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस है उसको आप देख लें. अभी उसमें सेकेंड स्टेप है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस. व्हाट इज इट? कुछ नहीं है, डेवलपिंग द प्रीमाइसेस ऑफ फ्यूचर फैक्टर्स एंड फोर्सेस. हम जब भी प्लान करेंगे फ्यूचर फैक्टर्स एंड फोर्सेस को डिज़ाइन करेंगे अपने प्लानिंग प्रोसेस में, उसी को बोलते हैं डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस. बाकी तो इजी पॉइंट्स हैं, यू कैन गो थ्रू, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा. अभी टाइप ऑफ प्लान में आपका स्टैंडिंग प्लान है, सिंगल यूज प्लान है. सिंगल यूज का एक बार हम प्लान किए उसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, फिर वो ख़त्म हो गया, दैट्स ओवर. प्रोजेक्ट हुआ, बजट हुआ, प्रोग्राम कमिंग अंडर द सिंगल यूज प्लान. एक बार हम यूज़ किए, ख़त्म, काम अचीव हो गया, बात ख़त्म. स्टैंडिंग प्लान का एक बार प्लान किया, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर एंड ओवर ईयर्स. ठीक है, दैट इज स्ट्रेटजी, प्रोसीजर. ठीक है, ये हो गए रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारे कम अंडर द स्टैंडिंग प्लान. उसका फीचर्स आप थोड़ा 2-3 फीचर्स देख लीजिए. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटजी और प्रोसीजर्स में क्या अंतर है, आप फीचर्स के थ्रू आप डिस्टिंक्शन कर सकेंगे. ठीक है, तो दैट इज द प्लानिंग चैप्टर. प्लानिंग का इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट. ओके, प्लानिंग क्या क्वेश्चन आते हैं, विल द प्लानिंग विल रिमूव द अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर? नो, इट कैन नॉट रिमूव बट इट कैन रिड्यूस ओनली. ऑलवेज कीप रिमेंबर, क्वेश्चन ऐसे 1 मार्क में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट failing to plan is a planning to fail. Failing to planning is the planning to fail. फेलिंग टू प्लानिंग मतलब आप प्लानिंग के लिए आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आप मतलब रेडी हैं फेल होने के लिए. यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में जाना होगा, आंसर करना होगा. लेकिन आप कहीं भी इम्पोर्टेंस आप नहीं लिखेंगे, आप इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स लिखेंगे. कीप रिमेंबर, आप कहीं भी इम्पोर्टेंस करके इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज द एज फॉलोज. नो, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स में आप इम्पोर्टेंस का पॉइंट डालेंगे. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस, ऑल ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. उनके स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के, उसको 3-4 स्टेप्स हैं, उसको आप देख लीजिए. इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग क्या है देख लीजिए. अभी डेलीगेशन, इसे ऑर्गेनाइजिंग में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, कॉन्सेप्ट है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द मैनेजर्स. When this concept is applied all across the organization, this is called the decentralization. जब पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है ऑल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, उसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. अभी दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इसको देख लीजिए, 2-3 पॉइंट इसका देख लीजिए. ठीक है, अंतर. नेक्स्ट चैप्टर इज द स्टाफिंग. स्टाफिंग से रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, steps in the recruitment process, screening of the application forms, then conducting the selection test. ठीक है, इंटरव्यू whatever you go through वो कॉमन है टर्म. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 2 बात. एक है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग मेथड्स. 2 बहुत इम्पोर्टेंट है जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट व्हाट, ठीक है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, व्हेन द एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स. प्रमोशन के चलते अगर वैकेंट हुआ है तो वी कैन रिक्रूट. ले ऑफ ऑफ द एम्प्लॉय जो ले ऑफ में बैठे हुए हैं घर में,
ले ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हेन द एम्प्लॉयज आर नॉट हैविंग एनी वर्क ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल्स एंड इनपुट्स के चलते एम्प्लॉय को घर पे बोला जाता है कि बैठिए आपको हाफ सैलरी मिलेगा। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द लेड ऑफ एम्प्लॉयज। लेड ऑफ एम्प्लॉयज को भी हम लोग इंटरनली रिक्रूट करता है कंपनी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ मोड ऑफ द इंटरनल रिक्रूटमेंट। इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, आप अच्छा से दो पॉइंट दो। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का भी द एम्प्लॉय रिक्रूटेड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज? फ्रेश टैलेंट इज कमिंग, कंपटीशन इज ऑल्सो इंड्यूस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। डिसएडवांटेजेस, आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विल रेसिस्ट टू externally recruited employees, they will create the problem, these disadvantages। तो इसको आप देख लें दो पॉइंट स्टाफिंग में। ट्रेनिंग मेथड्स में ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या? व्हेन द ट्रेनिंग इज गिवन ड्यूरिंग वर्किंग ड्यूरिंग द रियल वर्किंग ऑफ द बिजनेस, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जैसे जो गीता में अर्जुन, जो लॉर्ड कृष्णा ने जो ट्रेनिंग दिया था अर्जुना को, इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, गीता में तो दैट इज ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, दोनों आपको तो पॉइंट कर लीजिए आप। फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है? जब आउट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स आर गिवन इन द सेमिनार, वर्कशॉप, ठीक है, और डिफरेंट मॉडल्स ऑफ मशीन में हम दे रहे हैं इनको ट्रेनिंग लैब में, दैट इज कॉल्ड द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। वेजिटेबल ट्रेनिंग मेथड ऑफ द जॉब में आता है। व्हेन द मॉडल्स ऑफ मशीन, सेम मॉडल्स ऑफ मशीन आर केप्ट इन द लैबोरेटरी एंड द ट्रेनिंग इज गिवन टू एम्प्लॉय, दैट इज कॉल्ड द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दो पॉइंट आप कर लेंगे। ठीक है, स्टाफिंग हो गया। डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड व्हाट? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप। ठीक है, एलिमेंट्स हैं इनके डायरेक्टिंग फंक्शन के। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लीडरशिप स्टाइल, सबसे इम्पोर्टेंट है डायरेक्टिंग फंक्शन में। लीडरशिप स्टाइल, 3 टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। अभी तीनों, ऑल द स्टाइल्स आर इम्पोर्टेंट इक्वली। आप ये नहीं कर सकते ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज द आउटडेटेड, और इट कैन नॉट बी। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, ऑटोक्रेटिक, लीडरशिप, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन। ऑटोक्रेटिक कब अप्लाई होता है? जब द कंपनी न्यूली फॉर्म्ड है, फ्रेश एम्प्लॉयज आए हुए हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, लीडर मैनेजर को भी फेथ नहीं है, अभी जस्ट कंपनी स्टार्टेड। दैट सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आपको अप्लाई करना होता है जरूर। अब इसका डायग्राम है, स्केच है, ठीक है, उसको आप देख लेंगे, वो भी कभी पूछा जाता है बोर्ड में। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या है? व्हेन द लीडर मैनेजर कंसल्ट्स विद द एम्प्लॉयज, हैविंग सम फेथ ऑन द एम्प्लॉयज, थोड़ा कंपनी पुराना हो गया है, इन दैट सिचुएशन बट डिसीजन इज टेकन बाय द लीडर मैनेजर ओनली। यहाँ पर कंफ्यूज मत क्यों होइएगा आप। डेमोक्रेटिक का मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय विल टेक द डिसीजन, दे विल बी कंसल्टेड बाय द लीडर मैनेजर बिफोर डिसीजन इज टेकन बाय द लीडर मैनेजर। ठीक है, थोड़ा सा फेथ हो जाता है, कंपनी चल रही है, 5 साल हो गया, ठीक है, 10 साल हो गया, दिस इज द डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसके भी एडवांटेजेस, हर स्टाइल का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सिचुएशन, आप दो पॉइंट लिख कर रखिए लर्न करके, ज़्यादा नहीं करना आपको। फ्री रेन, यस, फुल फेथ ऑन एम्प्लॉयज, सबऑर्डिनेट्स बाय द लीडर मैनेजर। कंपनी पुरानी हो गई है, एम्प्लॉयज आर वेल experienced, talented, qualified, but leader manager will let the decision taken by the subordinate managers। तो इसका यहाँ पर लीडर मैनेजर
डिसीजन नहीं लेगा, सबऑर्डिनेट मैनेजर विल, बट लीडर मैनेजर विल मॉनिटर द प्रोसेस, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, डिसीजंस आर गिविंग द आउटकम और नॉट, ठीक है। तो यही इसमें तुम्हारा आपको फ्री रेंज में आ गया। तो डायरेक्टिव और डायरेक्टिव फंक्शन मैनेजमेंट में लीडरशिप, चलो एक आपको नीड हायरार्की थ्योरी भी कभी कभी आते हैं, ठीक है। नीड हायरार्की थ्योरी क्या? नीड हायरार्की थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हाउ एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, हाउ पीपल आर मोटिवेटेड। तो 5 लेवल्स है मोटिवेशन का। ये थ्योरी अनसेटिस्फाइड नीड पर बात करता है, नॉट द सेटिस्फाइड नीड, ध्यान रखिएगा। दिस थ्योरी सेज अबाउट द अनसेटिस्फाइड नीड, जैसे हमारे नीड सेटिस्फाइड होते जाएंगे आगे हम बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, तो पहले हम ब्रेड एंड बटर के लिए सोचेंगे, अपना नीड को फुलफिल करेंगे, फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। नेक्स्ट लेवल जब ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, नेक्स्ट में हम लोग चाहेंगे सेफ्टी एंड शेल्टर, ठीक है, दैट इज सेफ्टी नीड। ये हमारा नीड पूरा हो गया। अब नेक्स्ट अनसेटिस्फाइड नीड क्या है? सोशल नीड, लव एंड अफेक्शन एंड रिलेशनशिप, दैट इज सोशल नीड। आफ्टर ये पूरा हो गया, अब हम सोचेंगे अपना नेम एंड फेम के लिए, दैट इज एस्टीम नीड। तो ये 4 नीड जो है वो अपने लिए हैं। 5वां नीड है वेरी डिफरेंट नीड फ्रॉम द रेस्ट फोर, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये नीड है अनसेटिस्फाइड नीड फॉर द अदर्स, लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है। देखते हैं कितना लॉन्ग टर्म विजन में दूसरे लोगों का नीड कैसे सेटिस्फाई होगा, द लॉन्ग टर्म, दैट इज 100 years 200 years एंड नाउ कमिंग ईयर्स। चेन टाटा, जिनसे आपको टाटा का लीजिए, अंबानी का लीजिए, आप धीरू भाई अंबानी हैविंग द विजन, टाटा का विजन, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन की एक अच्छा हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। टाटा इज नो मोर, धीरू भाई अंबानी इज नो मोर, बट द कंपनी इज गोइंग ऑन, विल बी गोइंग ऑन, ठीक है। दिस इज व्हाट द नीड, अब्राहम नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। अब आप आगे हो गया देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ द कंट्रोलिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग, ये दो आप कर लीजिए, छोटा चैप्टर है। स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, measuring the actual performance, then comparing the actual performance with the standard performance, then finding the deviation if any, then taking decision on the deviation, what was the reason of the deviation, deviation क्यों हो रहा है, ये आपको देखना है। क्योंकि someone is responsible to locate that person, that employee and take action on him, और whether the what we have set the standard, उसमें तो एरर नहीं था, तो रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, हम लोग डेविएशन का एनालिसिस लास्ट स्टेप में करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस में। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग देख लीजिए, ठीक है, उसको देख लीजिए, केस स्टडी पे आते हैं इसमें। तो हम ऑल 5 ऑफ फंक्शन चैप्टर विल इज कम्प्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाइए फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन। 3 डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन है, एक है फाइनेंशियल डिसीजन, 3 है, फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है, डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या डिसीजन लिया जाता है कि इसमें इस चैप्टर में आपको एक कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स। दिस इज डन टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर्स। अकाउंटेंसी हम लोग शेयरहोल्डर फंड जो देते हैं बैलेंस शीट में, दैट इज द वेल्थ ऑफ द ओनर्स, ठीक है। तो इसमें द फाइनेंशियल प्लानिंग विच इज डन to maximize the wealth of owners, or decisions which are done to maximize the wealth of owners, that is called the financing decision or financial management, ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या है? एक्वायरिंग द फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एट रीजनेबल रेट, रीजनेबल कॉस्ट, so that and optimizing and is a fund which is to be utilized in the business optimally. This is the role of the finance manager.
डिफरेंट फंड्स को एक्वायर करें रीजनेबल रेट में एंड उसको यूज़ करें फंड को बिजनेस में ऑप्टिमल वे में, सो दैट द वेल्थ ऑफ द ओनर्स मैक्सिमाइज. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंसिंग डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स. व्हेन द फंड्स वी एक्वायर, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ना नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स में, टू जनरेट द प्रोडक्शन कैपेसिटी. ठीक है, जो यूज़ होता है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अभी हर डिसीजन का फैक्टर्स है, फैक्टर्स का क्यू पॉइंट 2-4 कर लेंगे आप, हाउ द फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन क्या है, when it is decided ki the which how much the profit is to be reinvested in the business and how much the profit is to be distributed as a dividend, it is called the dividend decision. इसके भी फैक्टर्स आप कर लीजिए, फैक्टर्स आप कर लेंगे, 4-5 फैक्टर्स हैं कॉमन. ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है. द mix of debt capital and owner's capital, equity capital in the total capital of the business, it is called the capital structure. कितना हम मिक्स मतलब कितना परसेंट हम डेप्ट कैपिटल रखें, कितना परसेंट हम इक्विटी कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, इसका भी फैक्टर्स आप देख लें. अभी फैक्टर्स में यस कैश फ्लो सिचुएशन होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमको डेप्ट को सर्विस करना है, पेमेंट करना है, इंटरेस्ट कंपल्सरी. वेदर यू आर मेकिंग प्रॉफिट और नॉट, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन लोन्स. तो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर का. ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाएं फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल क्या है, द कैपिटल विच इज यूज टू क्रिएट द फिक्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द फिक्स कैपिटल. इसके भी फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर्स इस चैप्टर में फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर्स. वर्किंग कैपिटल क्या है, द कैपिटल विच इज यूज टू ऑपरेट द बिजनेस, डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस में जो फंड यूज होता है, कैपिटल यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल. इसके भी फैक्टर्स, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल. ठीक है, जैसे सीजनल प्रोडक्शन है, सीजनल बिजनेस है, तो पर्टिकुलर सीजन में हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगा. ठीक है, जैसे वूलन गारमेंट्स, तो विंटर सीजन में इन मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड. इन समर सीजन यस कॉटन गारमेंट्स विल बी, फॉर कॉटन गारमेंट्स द मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड. ये फैक्टर्स हमको बताना है कैसे गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द डिमांड. ठीक है, तो फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स जनरली हर साल आते हैं, आना ही आना है, दैट आई वुड से फैक्टर्स. नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट. दो तरह का, एक मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है. मनी मार्केट क्या है, द मार्केट इन विच द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर डील्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 months. होल्डिंग पीरियड होगा मैक्सिमम 12 months आप रखेंगे, उसके बेच लेंगे, लिक्विडिटी निकाल लेंगे उसको. बट इन द मनी मार्केट द पब्लिक कैन नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली. ठीक है, मनी मार्केट में हु आर द प्लेयर्स इन द मनी मार्केट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में. बट पब्लिक कैन नॉट डायरेक्टली डील इन द मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट क्या है, द मार्केट इन विच फाइनेंशियल एसेट्स आर ट्रेडेड फॉर मोर देन 12 months. तो दैट इज कॉल्ड द कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में क्या है कि एवरीवन कैन इन्वेस्ट, क्योंकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लाइक कमोडिटी वी परचेज एंड सेल, परचेजेस आर देयर, सेलर्स आर देयर इन द मार्केट. ठीक है, अभी कैपिटल मार्केट भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट क्या, व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू इशू द सिक्योरिटी, डिबेंचर्स हो या शेयर्स, टू द पब्लिक डायरेक्टली. ठीक है, विदाउट हैविंग द एनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म,
दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज इश्यू होते हैं, अलॉट होते हैं कंपनी से, डिवेंचर्स और शेयर्स, वे फर्दर जब ट्रेड होंगे कहाँ होंगे, सेकेंडरी मार्केट में, फॉर द लिक्विडिटी पर्पस। लिक्विडिटी मतलब हम बेच के, हमको पैसे की ज़रूरत है, हमें शेयर अलॉट किया कंपनी ने, मेरे पास शेयर, अभी हमको चाहिए, ज़रूरत है पैसे का, तो हम कहाँ जाएंगे, प्राइमरी मार्केट में, और बिक्री नहीं होगा। इट विल बी सोल्ड आउट ओनली इन द सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंजेस आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। अभी सेकेंडरी मार्केट, अभी फाइनेंशियल मार्केट के फीचर्स एंड एडवांटेजेस क्या होगा, दैट इज द मोबिलाइजेशन ऑफ द हाउस होल्ड सेविंग्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटीज, हेल्प्स इन द कैपिटल फॉर्मेशन। ये कॉमन है फीचर्स एंड एडवांटेज, जो कि आपको फाइनेंशियल मार्केट में भी वही होगा, सेकेंडरी मार्केट में भी वही होगा, स्टॉक एक्सचेंज में भी वही होगा, आंसर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द कम टू द सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक कंट्रोलर होना चाहिए ना फाइनेंशियल मार्केट, ये जो कंट्रोल करेगा होल द प्रोसेस मार्केट का, तो हमको उसके कंट्रोलर चाहिए। तो द सेबी एक नया कंट्रोलर गवर्नमेंट ने बनाया, जो कि सारे प्रोसेस को, फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करता है। इसका 3 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड रेगुलेटरी फंक्शन। प्रोटेक्टिव में प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन इन्वेस्टर, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को भी रोकना मार्केट में, शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, व्हेन द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू लीक द इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी whose shares are listed in the secondary market, इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कि जिससे कि कंपनी को के बिजनेस को बूस्ट होने वाला है, तो लोग खरीद लेंगे ना शेयर्स अधिक से अधिक, तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय द सेबी। तब तो मार्केट जो है नॉर्मल वे में ऑपरेट नहीं करेगा ना, सबको मालूम हो गया इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने जा रहा है, कुछ नया डिसीजन होने वाला है, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड द मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का नॉर्मल उसके नॉर्म में नहीं आता है, दैट इज़ कॉल्ड द इनसाइडर ट्रेडिंग। आप उसको गेमिंग कर रहे हैं, जुआ हो जाएगा, गेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, हेल्प कर रहे हैं, तो कोई भी तो फिर पैसे लगा के तो मार्केट में क्राइसिस आ जाएगा, वैसे फिर मार्केट उसमें क्रैश करता है, जो हर्षद मेहता में हुआ था, इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ, हर्षद मेहता इनसाइडर ट्रेडिंग ही करता था, ठीक है। देन द डेवलपमेंट फंक्शन में गिविंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू द इन्वेस्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज को नंबर ओपन करने में हेल्प, फाइनेंस लेना है उसको, और मोर एंड मोर स्टॉक एक्सचेंज टू बी ओपन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दैट डेवलपमेंट फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में ब्रोकर्स को कंट्रोल करना, उनको उनके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना, उनको ऑडिट करना, चेक करना, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रॉन्ग ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द फाइनेंशियल मार्केट का ये चैप्टर आपको इस तरह से पढ़ना है, बट छोटे छोटे चीज़ हैं, उनको आप निकाल देंगे आराम से। नेक्स्ट आप आ जाए मार्केटिंग मैनेजमेंट। व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है भी, तो मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। When the management of the marketing activities are done to achieve the goals of the organization, that is called the marketing management. There are 4 pieces of marketing mix. What is marketing mix? Mix of marketing strategies to achieve the marketing goal of the organization. 4 pieces of marketing: product mix, price mix, place mix and promotion mix. प्रोडक्ट मिक्स में क्या है, ब्रांडिंग आएगा, लेबलिंग आएगा, पैकेजिंग, ये 3 चीज़ें आप पढ़ लीजिए। वाई द ब्रांडिंग इज नीडेड, हाउ द ब्रांडिंग गिव द बेनिफिट, ठीक है। अभी ब्रांडिंग एंड ट्रेडमार्क में क्या अंतर है? व्हेन द ब्रांडिंग इज प्रोटेक्टेड बाय द लीगल एक्ट, दैट इज कॉल्ड द ट्रेडमार्क, ठीक है। ब्रांडिंग, लेबलिंग में लेबल जब बनता है, प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगता है, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग, उसका फीचर्स आप देख लीजिए। पैकेजिंग, हाउ द प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है, स्पेशल पैकेजिंग का क्या रोल है,
सेल में बहुत बड़ा रोल है। प्राइम पैकेजिंग क्यों होता है? टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम द डैमेज एंड पिल्फरेज। सेकेंडरी पैकेजिंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। स्पेशल पैकेजिंग टू प्रमोट द सेल। जैसे सेलिब्रेशन पैक्स, स्पेशल पैकेजिंग टू ल्योर द कस्टमर्स। ठीक है, जो हो गया। प्राइस मिक्स में फैक्टर्स फैक्टर्स आपको प्राइस मिक्स में करना, मिक्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, टू फुलफिल द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। क्या क्या फैक्टर्स हैं दैट प्राइस मिक्स में आपको इतना ही पढ़ना है। प्लेस मिक्स में क्या है? हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स प्रोडक्ट्स। उसमें अगर हम when the goods are sold through the channels, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स थ्रू द चैनल्स। ये टू वन लेवल, टू लेवल, जीरो लेवल। वन लेवल क्या है? व्हेन द वन इंटरमीडिएट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। जो रिटेलर, बीच में रिटेलर हैं, एक इंटरमीडिएट, उसको वन लेवल चैनल बोल देंगे। टू लेवल चैनल में होल सेलर रिटेलर दोनों हैं, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। टू लेवल चैनल। थ्री लेवल चैनल, CF एजेंट, होल सेलर, रिटेलर, थ्री इंटरमीडिएट, थ्री लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल, देयर इज नो इंटरमीडिएट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। अभी द मैन्युफैक्चरर विल सेल द गुड्स एंड सर्विसेज ओनली थ्रू देयर ओन चैनल, ओन अपने रिटेल आउटलेट के थ्रू बेचेंगे। ठीक है, चैनल होना बहुत, रिटेल आउटलेट होना बहुत ज़रूरी है लेवल ऑफ चैनल्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रिटेल आउटलेट नहीं होता, इसमें भी कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, लेकिन इसमें रिटेल आउटलेट के थ्रू नहीं होता है, डायरेक्ट सेलिंग। फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर द गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर, टू द प्लेस ऑफ कंज्यूमर, टू द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ठीक है, यूज़ करके। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसको मतलब डायरेक्ट सेलिंग भी बोल सकते हैं। रिटेल आउटलेट नहीं होगा इसमें। ठीक है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में रिटेल आउटलेट होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आंसर करते समय। ठीक है, तो प्रेस मिक्स हो गया। प्रमोशन मिक्स में द 4 एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स: एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल रिलेशन। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग क्या है? नॉन पर्सनल मोड ऑफ प्रमोशन ऑफ द गुड्स है। होर्डिंग लग गया है बहुत बड़ा, मास कम्युनिकेशन को, बट जस्ट इट इज़ द डिस्प्ले, इंटरेक्ट नहीं करेगा कस्टमर से, मास डिस्प्ले होगा, टारगेट करेगा एडवर्टाइजिंग। इम्पर्सनल मोड ऑफ प्रमोशन। बट पर्सनल सेलिंग क्या है? जब सेल्स मैन दे विल विजिट द डोर टू द प्लेस ऑफ कंज्यूमर्स, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल सेलिंग। थर्ड है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या है कि डिफरेंट टेक्निक्स, थ्रू द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द सेल्स प्रमोशन द गुड्स आर प्रमोटेड। डिस्काउंट दे दिए, रिबेट दे दिए, कॉन्टेस्ट टिकट दे दिए, वाउचर्स है, सो मेनी थिंग्स आर देयर थ्रू द, दैट इज कॉल्ड द सेल्स प्रमोशन। सेल लगता है ना, सेल, डिस्काउंट। अच्छा, सेल जब नया न्यू सीजन आता है, उसके पहले जो प्रोडक्ट बैठे रखे हुए हैं, पाइल ऑफ इन्वेंट्री, उसको निकालना है, तो वी जस्ट क्लियर द पाइल ऑफ द स्टॉक थ्रू द सेल्स प्रमोशन टेक्निक, रिबेट एंड डिस्काउंट्स देखिए। ठीक है, सेल्स प्रमोशन। पर्सनल रिलेशनशिप, द बिल्डिंग द रिलेशनशिप विद एवरीवन इन द supply chain of goods and services. Everyone is having the customer of everyone. Develop the relationship. There should be clarity in the supply of goods and services. Relationship should be person selling. सबका relationship, personal relation, everyone having the good relation among themselves. That is the personal relations. ठीक है, बैरियर्स हटना चाहिए, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हटना चाहिए। नाउ एक हमारा डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में एक छूट गया था। डायरेक्ट कम्युनिकेशन है द
एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन। 4 एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में भी बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बैरियर्स है। सिमेटिक बैरियर, पर्सनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, 4 बैरियर्स है। अभी सिमेटिक बैरियर क्या है? व्हेन द बैरियर अराइज ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड टेक्निकल जार्गन ऑफ द वर्ड्स। अगर लैंग्वेज के चलते अभी हम अगर नॉन इस हिंदी स्पीकिंग एरिया में जा रहे हैं और हिंदी में आप बोलेंगे आप, तो बैरियर अराइज होगा, कस्टमर विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट वी आर सेइंग। तो व्हेन द बैरियर अराइजिंग ड्यू टू लैंग्वेज एंड टेक्निकल, अगर टेक्निकल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं और कॉमन मैन को नहीं मालूम है टेक्निकल वर्ड्स क्या होता है और जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने को अपना सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं, हम बहुत जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिमेंटिक बैरियर। और बैरियर जब खड़ा होगा तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान में रखिए, ठीक है। देन पर्सनल बैरियर, व्हेन द पर्सन बायसनेस कि हमसे आगे निकल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँ, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशन और डर अगर है, इमोशन है, उसके चलते हम नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ठीक से, दैट इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, व्हेन ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, हमको उतना ही बोलना है जितना रूल एंड रेगुलेशन दिया हुआ है, पॉलिसी है गवर्नमेंट मैनेजमेंट का। इसके चलते जब बैरियर अराइज होता है, लिमिटेशंस, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ठीक है। तो ये बैरियर आप पढ़ लीजिए, इफेक्टिव बैरियर क्या क्या 4, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 6 मार्क्स का रहता है, इसको भी आप निकाल लेंगे आराम से। वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड? व्हेन बिकॉज कंज्यूमर्स आर largely exploited by the sellers, therefore consumer protection is needed, ठीक है। क्यों? ठीक है, इसमें हो गया वाई इट इज़ नीडेड। कंज्यूमर राइट्स है दिया हुआ आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में राइट्स है, ठीक है। क्या क्या राइट्स है? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल एंड राइट टू एजुकेशन, ये इतने राइट्स हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स इज टू बी गिवन, द राइट ऑफ द कंज्यूमर। राइट टू चॉइस, जनरली सेलर्स फोर्स करते हैं कस्टमर्स को, ये नहीं होना चाहिए, तो इट इज़ राइट ऑफ द कस्टमर टू चूज द प्रोडक्ट, इट विल नॉट द राइट ऑफ द सेलर। राइट टू चॉइस में राइट टू बी हर्ड, मतलब कंज्यूमर के प्रॉब्लम का सुनवाई होना चाहिए उनके प्रॉब्लम का केस जो है रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड होना चाहिए बाय द सेलर और बाय द कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर कमीशन, दैट इज़ द राइट टू बी हर्ड, सुनवाई होना चाहिए कि उनका सुनवाई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। देन द राइट टू रिड्रेसल, उनके प्रॉब्लम का सुनवाई विद इन तय समय में समाधान भी होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए प्रॉब्लम, दैट इज़ द राइट टू रिड्रेसल। देन राइट टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कंज्यूमर्स को ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मिलना चाहिए सेलर के द्वारा, ठीक है। तो दीज आर द राइट्स। अभी कंज्यूमर्स के ड्यूटी भी है उसकी ड्यूटी भी क्या है? तो चेक द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ द एक्सपायरी, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट जो लेबलिंग में रहता है उसको भी देखना, दैट इज द कंज्यूमर ड्यूटीज़। तो टेक द कैश मेमो, बिल, ठीक है। रीड द वारंटी गारंटी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये कंज्यूमर ड्यूटीज़। अभी राइट टू रिड्रेसल में 3 रिड्रेसल मशीनरी अवेलेबल हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा। पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन विच इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। गुड्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? अप टू 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ तक गुड्स का प्रॉब्लम्स को कहाँ देखा जाएगा, सुना जाएगा, कहाँ सॉल्व होगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, ठीक है। नाउ द स्टेट कमीशन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट। यहाँ पर गुड्स का वैल्यू क्या होगा? मोर देन 1 करोड़ टू 10 करोड़, गुड्स का वैल्यू का प्रॉब्लम
सुना जाएगा, केस रजिस्टर्ड होगा, सुना ही होगा. एंड नेशनल कमीशन विच इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट नेशनल लेवल, यहाँ पर मोर देन 10 crore गुड्स एंड सर्विसेज हैविंग द वैल्यू विल बी डील्ड एंड रिडर्सल विल बी डन. तो 3 रिडर्सल मशीनरी, इनका वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस वो जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, पर ध्यान देंगे आप इस पर बस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, इसमें क्या, हु कैन फाइल द कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर्स, हु कैन फाइल. इफ द कंज्यूमर्स आर एजुकेटेड देन itself कंज्यूमर विल फाइल द केस. इफ द कंज्यूमर्स आर नॉट एजुकेटेड देन द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन NGOs कैन फाइल द कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स. ठीक है. तो 6 मार्क्स आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन से हैं, ये भी आसान है, इसको भी आप देख सकते हैं और कम समय में आप इसको समझ भी सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स ऑफ द BST. आप इसका की जितने मैंने आपको डिस्कस किया है, हर का 2 की पॉइंट आप एक लिख लें, कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, और उसको माइंड में रखें. ठीक है. थोड़ा केस स्टडी 2-4 देख लें, पढ़ लें आप. केस स्टडी में कुछ नहीं है, एक कीवर्ड की लाइन जो है इम्पोर्टेंट होता है डिसाइड करने के लिए. ठीक है. दैट इज़ व्हाट. Clear, all of you? All the best and best of luck for the BST board examination. Thank you. Hari Om.